Sai Ram, dear children, welcome to today's math class. We will start today's class by chanting Omkar 3 times. All of you join your hands, close your eyes, and join me for prayer. Om. 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 Sai Ram, children. We are going to Sai Ram, all of you. Sai Ram, एक बार Sai Ram बोलिए सब लोग. Sai Ram ma'am. एक बार Sai Ram. Very good, very good. हार्दिक, हार्दिक आप भी Sai Ram बोलिए. हार्दिक, हाँ, सबका अटेंडेंस हो जाए. Okay, very good, very good. Okay, so children, as I discussed you earlier, we have completed the classwork of this lesson number 10, tens and hundreds. Okay, we took a lot of time for this lesson doing classwork. Okay, because Sairam नहीं बोला तो Sairam बोलो बेटा. Okay, then you off the mic. Okay, off the mic. Then off the mic. Okay. Now all of you should have your textbook with you today. We are going to fill up the important parts in the textbook. Page number 134. Page number 134. Take the book. So there are after learning the lesson, I told you already, we will be able to solve all the questions very easily. Okay. But I will not read each and every point of page of the book, important parts. Okay, so let us take page number 134. Okay, page number 134. There is a scale. You can see a scale. Scale दिख रहा है क्या पिक्चर में? Can you see a scale? Yes. Yes ma'am. You can talk now. Yes ma'am. That scale एक पेंसिल को नाप रहे हैं. एक पेंसिल को नाप रहे हैं. तो कैन यू से व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट पेंसिल? कैन यू से व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट पेंसिल? Ma'am, 3.6 centimeter. 3.6 centimeter. So can you say this 3.6 centimeter as centimeter and millimeter? डबल यूनिट में बता सकते हो. 3.6 centimeter is equal to 3 centimeter, 6 millimeter. This is what I told you. क्लास वर्क करने के बाद बुक का आपको आ जाएगा. ठीक है. ओके, सब मैं छोड़ रही हूँ. ओके, और उस पेज में सबसे लास्ट वाला लाइन देखो, 1 मिलीमीटर. उस पेज में सबसे अंडरलाइन करते जाना. जो लाइन मैं बता रही हूँ उसको अंडरलाइन करते जाना. लास्ट सेंटेंस को अंडरलाइन करो. 1 millimeter is same as 0.1 centimeter. ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैम आया. 1 millimeter means millimeter centimeter का रिलेशन बनता है 1/10. 1/10 is same as 0.1 centimeter. ये चीज आपको समझ में आया? Yes or no? Yes. Yes. Yes ma'am. Clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Next page. Next page. There is one question. एक छोटा सा पेंसिल का नाप है. What is the length of this pencil dash millimeter? मिलीमीटर में बताइए. 1 से लेकर कितना लाइन से? देखो 0 से नापा नहीं है, 1 से है. कितनी? 6 millimeter. 6 millimeter. Then there is one attached question. What is the length in centimeter? इसका मतलब है 6 millimeter is how many centimeter? Higher unit. 0.6 centimeter. 0.6 centimeter. Very good. 6/10. 0.6 centimeter. आंसर लिख दीजिए 0.6 centimeter. वहां पे स्पेस डैश नहीं दिया है. You can write it after the question mark. Question mark के बाद आप लिख सकते हो 0.6 centimeter. ये क्लियर हो गया? देखो जो हमने सीखा है हम बुक में अप्लाई कर रहे हैं. अब ये फ्रॉग वाला आप पढ़ लीजिए. आई डोंट वांट टू रीड दिस ऑल. और उसके नीचे वाला लाइन में आ जाइए जहाँ राइटिंग है.
What does 0.9 सेंटीमीटर मीन? 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? It is the same as dash millimeter. That 9 means millimeter. 0.9 सेंटीमीटर is how many millimeter? लोअर यूनिट में करने का. ओके, 9 मिलीमीटर. आपको देखो आंसर मिल गया. 0.9 इंटू 10 करना है. सलोनी क्लियर है क्या बेटा? सलोनी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस. ओके, 0.9 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर. इसका मतलब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है इंटू 10. पॉइंट एक पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा 9 मिलीमीटर. वी कैन ऑल्सो सी दिस इज 9/10 ऑफ ए सेंटीमीटर. समझ में आया? 9/10. ओके, next line. So 30.5 सेंटीमीटर is the same as, इसका मतलब 30.5 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखना है. डैश सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर. 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर 30 सेंटीमीटर 5 मिलीलीटर. 30 सेंटीमीटर and 5 मिलीमीटर. मिलीमीटर. 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर. देखो, आप सीखने के बाद बुक करना आसान हो रहा है ना? हार्दिक, आपको समझ में आ रहा है? हार्दिक इज गेटिंग डिस्टर्ब. हार्दिक बीच बीच में आने से तकलीफ होगा बेटा, डेली आने से समझ आ जाएगा. ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो बोलना. अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग, वो छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन सब छोड़ दो. अब प्रैक्टिस टाइम पे आ जाइए. प्रैक्टिस टाइम. लेंथ ऑफ द नेल्स, टेल के ऊपर नेल को, कील को नाप रहा है. पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है ना? 0 से स्टार्ट किया है. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेल? आप बताइए, पॉइंट में बताइए सबसे पहले, वो आसान है आपके लिए. 2 पॉइंट क्या? 2.10 सेंटीमीटर. 2 नो 2.10 कैसे? 9 2.9 सेंटीमीटर. से एक लाइन पीछे 2.9 ओके. अब देखिए, अब आपको आ जाएगा. लेंथ ऑफ द नेल 2 सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर. हाउ मेनी मिलीमीटर? 9 मिलीमीटर. 9 मिलीमीटर. मैम मेरी बुक में सही से नहीं दिख रहा. मैम मेरी बुक में सही से नहीं छपा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो 1-2 लाइन छोड़ दो और उसको डेसिमल में लिखना है. 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर इज सेम एज 2 पॉइंट कर दिया है 9 सेंटीमीटर. 2.9 सेंटीमीटर. सब कन्वर्शन है जो हमने कॉपी में सीखा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. हियर वन, what is it called? Lady's finger is measured. But remember वो 0 से नहीं नाप रहा है. देखो 1 से शुरू है. 1 से शुरू है तो ओरिजिनल जो मेजरमेंट स्केल पे जो दिख रहे हैं ना, उससे 1 सेंटीमीटर आपको कम करना पड़ेगा. 0 से नहीं किया है. देखो, बी केयरफुल. 1 से स्टार्टिंग है. वो कहाँ तक है? वो जो लेडीज फिंगर का जो टिप है ना, एंड, वहां से आप स्केल की तरफ लाइन खींच के देखो. टिप से स्केल से लाइन खींच के देखो. मैम उसका टिप तब मुझे भी पता चलेगा. 9.5 सेंटीमीटर पे है. बेटा 1 मिनट. मैम मेरे में 8.2 आ रहा है. मुझे करना पड़ेगा. मैम मेरे में मेरे में 8.2 सेंटीमीटर. मैम मेरे में 9.3 आ रहा है. मैम मेरे में 9.3 आ रहा है. अच्छा ये मेरे में 9.4 आ रहा है. 9.4 समझिए इसको. 9.3, 4 कुछ भी हो. 9.3 हो या 9.4 हो. आई एम ऑल्सो गेटिंग 9.4. ओके, बट रिमेम्बर हमने 1 से शुरू किया है ना मेजरमेंट, तो इसका ओरिजिनल मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर कम होगा 9.4 से. 8.4 होगा. 8.4 होगा. That is the length of the lady's finger is 8.4. 8.4 अब हम सेंटीमीटर. नीचे का लाइन में आ जाइए. लेंथ ऑफ द लेडीज फिंगर इज डैश सेंटीमीटर डैश मिलीमीटर 4 मिलीमीटर. सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर.
We can also write it as Ma'am, dash मुझे centimeter. देखो higher unit. 8.4 8.4 सेंटीमीटर. समझ रहे हो? हमने इसलिए पहले कॉपी में सीखा था. ओके, 8.4 सेंटीमीटर. उसके नीचे एक कैंडल वाला है, वो आपको बहुत टाइम टेकिंग है, वो आप खुद कर लेना. मैं छोड़ रही हूँ उसको. उसके नीचे का लाइन भी मैं छोड़ रही मैम हूँ. कर लिया. हाँ, ओके. नेक्स्ट पेज भी मैं छोड़ रही हूँ. नाउ यू कम टू कहाँ पे आना है? पेज नंबर 138. पेज नंबर 138. पेज नंबर 138 पे आ जाइए. एट द मार्केट. एट द मार्केट एक हेडिंग देखा नीचे. Did you see a heading at the market? Which page? Page Yes, number ma'am. 1. Yes, ma'am. यहाँ पे क्वेश्चन है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे क्वेश्चन है, हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, आपका वीडियो ऑन है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे दिखता है आप लोग करते हुए तो अच्छा लगता है. ओके, देन एट द मार्केट में देखो, देयर आर सम थिंग्स विथ प्राइस टैग्स. So let us go through one by one. Okay, you can see a clock, maybe a clock, है ना. सन जैसा पिक्चर बनाया हुआ. इट इज अ क्लॉक, स्माइली जैसा. ओके, इट्स अ क्लॉक. व्हाट इज इट्स प्राइस? Rupees 567.5. Then one egg tray is there. You can see there is a price tag. Rupees 2.50 for one One egg. And then there are 4 eggs. 2.50 for one egg. That means one egg cost 2 rupees. 2 rupees 50 paise. 2.50 rupees means 2 rupees 50 paise. Now coming to a bag. There is a bag. It is 120 rupees, 120.50. And there is a smoke. Green color का नीम का जैसा दिखता है ना. क्या लिखा है? बोलो. 8.75. 8.75 rupees. 8.75 paise. 8.75. How to read it? How to read a decimal? 8.75. 7.5. Okay. Next. To the right, there is a matchbox. उसका प्राइस क्या लिखा है सलोनी? matchbox का क्या लिखा है देखो? 0.50. हाँ, वेरी गुड. ₹0.50. इसका मतलब क्या है? कोई बता सकते हो? What is the meaning of this? रुपीस 0.50. वेरी गुड. 50 पैसे. और ऊपर देखो, देर इज ए पेन. इन द प्राइस टैग व्हाट इज रिटन? रुपीस 6.5. तन्वी 6.50. Kashmir, there is a pair of slippers. Yes, What is ma'am. the price? What is the price of it? 32.99 rupees. What does it mean? What is the meaning of that? इसका meaning क्या है बेटा? स्मिथ बताइए. 32.99 means इसका meaning क्या है? 32 rupees 99 आपने शायद नोटिस किया होगा, when we buy slippers, shoes, etc. उसमें प्राइस में हमेशा 99 पैसा लिखा रहता है, पूरा 1 रुपी नहीं लिखते हैं. ठीक है, that's a business trick. Okay, now coming to the next page. Next page is very important. Okay, अब ये बच्चे हो गए, लेट आते हैं कुछ लोग, है ना. 1 मिनट बेटा. Yes. Okay. Now coming to the next page, page number 139. This page is very important. Then there is a conversation between one girl and her mother, maybe mother. Look at this funny price. What is the funny price? इसमें से funny price कौन सा होगा? Slippers का. 32.99. Pair of slippers. Yes, 99 paisa वाला. And they are discussing about it. They are discussing about it. Okay, 32 rupees and 99 paise. But if we give 33 rupees, then they don't give us back 1 paisa. It is like that only. No shopkeeper will give us 1 paise back. Okay.
Then next, the girl is asking a question. What part of a rupee is 1 paisa? इसका आंसर आपके पास है क्या? What part of a rupee is 1 paisa? 1 paisa is how many rupee? ये लड़की का क्वेश्चन 1/100. 1/100. 1/100. 1/100. जो क्वेश्चन है उसके सामने आप 1/100 लिख दीजिए, 1/100 रुपीज, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए. 1/100 मीन्स हाउ मेनी रुपीज? 0.01 rupees. रुपीस नहीं है, 0.01 rupees. लिसन, आपका डेसिमल करेक्ट है. मेरी बातों से आंसर सुनो, यशमित भी सुनो, आरव भी सुनो, ठीक है. तो आपने आंसर सही है 0.01, पर वो 1 रुपए से भी कम है ना. 1 पैसा मतलब 1 रुपए के भी कम है, इसलिए हमको सिंगुलर में बोलना है. रुपीस नहीं बोलेंगे, रुपी बोलेंगे. रुपी का शॉर्ट फॉर्म आरएस नहीं है, RE. आप क्या लिखोगे? RE 0.01. RE, कोई भी पैसा अकेला है तो RE लिखना. RE 0.01. आपको आ गया, इसमें मेरे को खुशी है. ओके, वेरी गुड. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मदर सेज? दिस इज ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस. वो 99 पैसे वाली बात छोड़ दो. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट. 1 पैसा इज 1/100 ऑफ ए रुपी, इजंट इट? आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप समझ लिए, आपने इसका आंसर बता दिया. इट्स वेरी गुड. इट इज रिटन एज, देखो, रुपी. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, RE. रुपी का शॉर्ट फॉर्म RE 0.01. आपने ये आंसर बोल दिया. नेक्स्ट आपको, सो दैट इज वाई वी राइट. आपको आप बताइए 99 पैसे मीन्स कितना रुपी होगा? वो भी 1 रुपए से कम है, RE लगेगा. 99 पैसे मीन्स 99 अपॉन, बोलिए, 99 अपॉन 99. 1 पैसे मीन्स 1 अपॉन 100. 99 upon 100. What is 99 upon 100? 100 upon rupee. रुपी, पर वो पॉइंट में बताइए, डेसिमल में. इन डेसिमल 99 अपॉन 100 क्या होगा? 0.99. 0.99 rupee. 0.99. तानवी को समझ में आया क्या? तानवी, मैम, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया. बेटा 99/100 कैसे करते हैं? 2 places टू द लेफ्ट. दोनों 9 को पार करते हुए लेफ्ट में जाना है, पॉइंट लगाना है. वही चीज जो हमने कॉपी में सीखा. ओके, तो 0.99 रुपी. अनुज को, ब्रिजेश को समझ में आ रहे है कि नहीं? अनुज, ब्रिजेश, बोलिए दोनों. आ रहा है ब्रिजेश को? ब्रिजेश, ब्रिजेश बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस ना, बोलो. यस. ओके ओके, ठीक है. अब नीचे पिक्चर के नीचे वाला पार्ट पे आ जाइए बुक में. वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी पैसा डस अ मैच बॉक्स कॉस्ट? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. यूनिट चेंज करके आंसर बोलोगे तो गलत माना जाएगा. तो इस क्वेश्चन में अधित्री, इस क्वेश्चन में आंसर शुड बी इन पैसा और पैसे और इन रुपीस. अधित्री बताइए. Ma'am, in this question, the answer should be in paise. पैसे. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. 50 यूनिट पैसे. देखना. हाँ, यस. इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही रुपीस में बताया तो आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि वी नीड आंसर इन पैसे. सो अब आपको प्राइस टैग के हिसाब से देखना पड़ेगा. हाउ मेनी पैसे डस ए मैच बॉक्स कॉस्ट? आपको पूछा है मैच बॉक्स कितने पैसे के हैं? 50 वेरी गुड. Don't write 0.50. It is wrong. That is in rupees. पैसे means 50 पैसे. Conversion है पूरा इसमें. Then answer is 50 paise. Next question is, how many matchboxes can be got for rupees 2.50? इसका मतलब अगर हमारे पास 2 rupees 50 पैसे हैं, कितने मैच बॉक्सेस हम ले सकते हैं? 1 50 का, 1 रुपए में 2,
2 रुपए में 4, 2.5 रुपए में कितना मिलेगा? 5 मार्च बॉक्स, 5 मार्च। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिट का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रुपीज, देखो हाउ मेनी रुपीज, रुपीज में आंसर चाहिए। हाउ मेनी रुपीज डज द शॉप कॉस्ट? रुपीज शॉप कितने रुपए का है? रुपीज 8.75 Correct, correct. Okay, now let us read the next question very carefully. Arun wants to buy a soap. अरुण को एक सोप खरीदना है. He has a 5 rupee coin, 2 1 rupee coins, and 4 half rupee coins. What is this half rupee coins? 50 rupees. 50 rupees. You calculate how many rupees Arun has. सबसे पहले आप सबको जोड़ के देखिए. एक 5 रुपए का coin है. Then that means it is 5 rupees. 2 1 rupee coins means how many rupees? 2 1 rupee coins means how many rupees? 2 rupees. 2 rupees. 7. How many? 5 plus 2 rupees? 7. Then 4 half rupee coins. कितने रुपए हो गया? 50 पैसे का 4 सिक्के. 2 rupees. 2 rupees. 7 plus 2 how many rupees? Ma'am, 9 rupees. 9. That means Arun has 9 rupees. He will get. Okay. And he is going to buy a soap. What is the cost of the soap? 8 rupees 75 paise. 9 rupees उसके हाथ में है. 8 rupees 75 पैसे देना पड़ेगा. So how many rupees is? Question is write in rupees. Question ध्यान से पढ़ो. 25 पैसे नहीं लिखना है आपको. Write in rupees. 0.25 rupees. 0.25 भी नहीं है. रुपी, रुपी से स्टार्ट करो. RE 0.25. RE 0.25. Ma'am, क्वेश्चन ध्यान से. क्या होता है? रुपीज लिखा है. वो तो क्वेश्चन में रुपीस लिखा है. वो जनरली हम रुपीस बोलते हैं. But in our answer it is paisa only. So we have to change it to RE. ठीक है? Okay. ma'am, in paisa we don't write rupees. Ma'am, in paisa we don't write RS. नहीं 1 रुपी से ज्यादा है तभी RS लिखेंगे. 1 रुपी से कम है हम RE लिखेंगे. ठीक है? ओके. RE. ओके. रुपी. ऊपर देखो ना, वो जो कन्वर्सेशन में वो लेडी कह रही है रुपी 0.99. 99 पैसे में भी RE लगेगा. 1 रुपी जब होगा ना तब RS लगेगा. ओके. तब इज इट क्लियर? आपको ध्यान से देखना है. हम क्या करते हैं एक्चुअली, जल्दी में हमें समझ में आ गया. हम लोग आंसर लिखेंगे 25 पैसे, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 25 पैसे इज ए रॉन्ग आंसर. बच्चों को समझ में आया मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ? क्वेश्चन हमें कन्वर्शन का है. हमें आंसर 25 पैसा नहीं चाहिए. वी नीड टू कन्वर्ट 25 पैसा इनटू रुपीस एंड राइट द आंसर. गॉट इट? आप एग्जाम लिख के सोचेंगे हमारा सही है, क्वेश्चन बहुत आसान था, पर क्वेश्चन पैसे में नहीं पूछा, रुपीस में पूछा है. अपना आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी अवर आंसर? रुपी 0.25. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 5. Coming to question number 5. An egg costs 2.5 rupees. How much will 1.5 dozen cost? 1.5 dozen. And we know this is a little bit different question. 1.5 dozen cost means how many? 1 dozen is? 1 dozen is? 1/2 dozen is 6. 12 plus 6. 12 plus 6 how many? 18. We have to find out the cost of 18 eggs. Okay, 18 eggs. Okay, so what we have to do is 1 egg is costing 2 rupees 50 paise. तो आपको 18 eggs का कॉस्ट करना है. 18 into, बेटा क्वेश्चन के सामने लिखो 18 into 2.50. लिख दीजिए 18 into 2.50.
ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट मैं बताती हूँ। 2.5 है ना, आप 18 into 2 कर दीजिए, आपको टेबल से पता है 18 into 2 is how much? मैम बोलो 36। 36. 36. Ma'am, 18 36. into 0.5 means 18 का हाफ, 18 into 0.5 means 18 का हाफ। आप 18 का हाफ बताइए कितना है? 9. 9. 9। आप 36 के साथ 9 जोड़ दीजिए। दिस इज द वे ऑफ डूइंग। 45 rupees. 45 Ma'am, रुपीस। 45 तो rupees. आंसर मिल गया। What is the cost of this much eggs? 45 rupees। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ओके, मैम मुझे लिखो। नहीं आया। मैम समझ आ मैम गया. मुझे नहीं आया। फिर से बोलूंगी। 1.5 eggs means 18 eggs। ये समझ में आया सबको? 12 plus 6 18। और एक एग 2.5 रुपीस का है, मीन्स 2.50 का है। 2.50 मीन्स 2.5। तो हम लोग इजीली ये करते हैं 18 into 2.5। तन्वी, पहले हम लोग 18 into 2 करेंगे। 18 into 2 is how much? 36। 36। ठीक है ना? हाँ। ठीक है ना तन्वी? और फिर यस 18 into हाफ करेंगे। 18 into हाफ का मतलब है 18 का हाफ। 18 का हाफ कितना है? 9। 9। तो 36 के साथ 9 प्लस कर दो, क्या मिलेगा? 45 rupees. 45 रुपीस। रुपीज। ये मैंने बताया, अभी समझ में आया? तो दैट Yes, मीन्स कॉस्ट इज 45 रुपीज। अब बी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी पेन्स कैन कन्नन बाय? अच्छा, you can see the picture. In this picture you can see Kannan and her mother and his mother. So mother says, देखो conversation देखो, Kannan take ₹60। आप 60 रुपीज, 60 रुपए ले जाओ and buy one। You can buy pens with the money left। जितना पैसा बचेगा उससे आप पेन खरीद लो, ऐसे मम्मी ने बोला है। मम्मी ने कितने रुपए दिया बताइए? 60। 60 और rupees. एग्स खरीदने को बोला है 45 रुपीज, उसमें खर्च हो जाएगा। 60 में से 45 जाने के बाद हाउ मच मनी इज लेफ्ट? 15 rupees. 15 रुपीज रुपीज। बचा। 15 मम्मी का रुपीज। इंस्ट्रक्शन है, पैसा बचा है 15 रुपीज से आप पेन खरीद लो। हमारा क्वेश्चन है बी में, हाउ मेनी पेन्स कैन कन्नन बाय? ये 15 रुपीज ले जा करके पेन का प्राइस आप देखिए, पेन का प्राइस 6 rupees 50 paise. 6 रुपीज 50 पैसे। वो 15 रुपीज से कितना पेन खरीद सकते हैं मैक्सिमम बताइए? एक पेन 6 रुपीज 50 पैसे का है। 2 pens. टू Ma'am, 2 पेन्स, pens. 2 पेन्स में कितना रुपए जाएगा? कितना रुपए जाएगा? 13 rupees. 13 रुपीज जाएगा। ओके, 13 रुपीज 13 जाएगा। तो हाउ मच मनी? Rupees 2. 2 Rupees rupees. 2. रुपीज 2 रुपीज। 2 Rupees रुपीज। 2. दोनों चीजें लेने के बाद ₹2 बचेगा। 2 रुपीज बचेगा। ठीक है, बट इट Yes, यस। ma'am. Yes, ma'am. Then sixth question. Am I? The price of 2 pens is rupees dash। अभी हमने कैलकुलेट किया है, 2 पेन कितने रुपए का है? Ma'am, 13. 13 rupees. मैम 13 रुपीज। Ma'am, 13. Can she buy 2 pens? Yes. Yes। किसके बारे में? ये लड़की के बारे यस। में है। 13 रुपीज है उस लड़की के पास। 13 रुपीज से कैन शी बाई 2 पेन्स? Yes. यस। पूरा Yes. पैसा खर्च हो जाएगा, बट शी कैन बाय। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ये भी हमने सीखा है, मैचिंग। देखिए, मैचिंग हमने सीखा है। एक मैचिंग करके दिया है, ₹1/2 is 50 पैसे और 50 पैसे इज इक्वल टू ₹0.50। दो मैचिंग है हर क्वेश्चन में। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वन। मैं एक एक बच्चे से पूछूं, बता सकते हो आप लोग? Yes, ma'am. धनंजय बेटा, धनंजय जल्दी बोलना, टाइम नहीं लेना। संकल्प, धनंजय बोलेगा नहीं। संकल्प
संगर बेटा आप नेक्स्ट ₹1/10 वाला मैचिंग बताइए संगर। संगर मैम आप फिर से बोलिए क्वेश्चन। सेकंड लाइन में जो ₹1/10 है वो किससे मैच होगा? 1/10 मैचिंग विथ मैम मैम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बात कर मैम। कंफ्यूजन है। विकास बोलिए, विकास बोलिए। 1/10 इस मैचिंग विथ कितना पैसा है? 1/10 माने कौन सा पैसा है इसमें से? मैम 10 पीसेस। 10 पैसे। 10 पैसे अंकल। 1/10 मीन्स 10 पैसे। 10 पैसे डेसिमल में क्या है? थर्ड कॉलम में आ जाओ। 10 पैसे मीन्स रुपी कौन सा है? 0 0.10। हाँ 0.10 0.10। ओके नंदिनी नेक्स्ट वाला बताइए। ₹5/100 ₹5/100। नंदिनी जल्दी बोलना बेटा, टाइम ओवर हो रहा है। हाँ हाँ नंदिनी यस मैम 5/100 किससे मैचिंग है? कितना पैसा है 5/100 माने? 5/100 इज हाउ मेनी पैसे? आर्यन आर्यन बोलिए बेटा। आर्यन 5/100 1 मिनट। आर्यन बेटा इतना पूछ पूछ के टाइम वेस्ट हो रहा है। आर्यन 5/100 मीन्स हाउ मेनी पैसे? सेकंड कॉलम में दिया है ना, उसमें से चॉइस बताइए। 5/100 इज हाउ मेनी पैसे? 5 पैसे, 25 पैसे, विच वन इज करेक्ट? आर्यन नहीं आरव बोलिए, टाइम बहुत जा रहा है फालतू में। हाँ मैम कहना है आरव 5 पैसे। 5 मैम 5 पैसे। पैसे। मैम कहना है 5/100 मीन्स 5 पैसे। और आरव मैम सॉरी कैन आई आंसर द आर्यन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पैसे मीन्स डेसिमल में क्या है? आर्यन 5 पैसे डेसिमल में सेलेक्ट करो। कौन सा बॉक्स? फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, कौन सा है? रुपीस रुपी रुपी नक्षत्रा नक्षत्रा बोलिए। विच इज हाँ बोलिए नक्षत्रा। रुपी 5/10 100 सॉरी देखो 5/100 मीन्स 5 पैसे। 5 पैसे डेसिमल में क्या होगा? 5 पैसे डेसिमल में 5/100 को डेसिमल में 0 रुपी 0.05 रुपी 0.05। ओके इसके लिए कॉपी में बहुत एक्सरसाइज करवाया था। ओके नेक्स्ट रुपी 3/4 3/4 रुपीज मीन 75 पैसे। कितना है? 75 पैसे। और डेसिमल में रुपी 0.7 ओके नेक्स्ट रुपी 99/100 हाउ मेनी पैसा इट इज? 99 Very good. Then last one, rupee 1/4. 1/4 means 25 paise. 1/4 means 25 paise. Decimal it is 0.25 0.25. Very good. इसका नक्षत्र एक बार पूरा आंसर एक बार रीड कर दीजिए बेटा, अगर किसी को नहीं मिला तो। हाँ, पूरा आंसर रीड कर दीजिए A to Z। मैचिंग मैचिंग के साथ पढ़िए बेटा। ये फर्स्ट वन रुपी एक एक हाफ रुपी 50 पैसे वेरी गुड 0.50 रुपी। वेरी गुड वेरी गुड। अद्रिता सेकंड लाइन पढ़िए बेटा मैचिंग के साथ। रुपी 1/10 1/10 हाँ 10 पैसे 0.10 रुपीज। वेरी गुड। अदित्री लाइन पढ़िए बेटा। Yes, ma'am. Aditri. Yes, ma'am. Rupee 5/100 is 5 paise. Rupee 0.05. 0.05 Very good. rupee. Very good. Very good. Arav
फोर्थ लाइन पढ़िए बेटा आरव। Rupee 3 by 4, 75 पैसे, हाँ, Rupee 0.75. ओके। अब ब्रिजेश पढ़िए ₹99 वाला नेक्स्ट लाइन। ब्रिजेश इन लोगों को बुलाया तो खोलो बेटा और माइक ऑन करके बोलिए। 99 by 100, 99 पैसे, हाँ, 0.99 पैसे और लास्ट वेरी गुड 0.99। अनुज लास्ट वाला पढ़िए। अनुज लास्ट वाला रीड कर दीजिए। अनुज जल्दी बोलो। हार्दिक बोलो। और मैं चांस दे रही हूँ पर नहीं बोल रहा है आप लोग। तन्वी बोलिए। तन्वी मैम क्या? तन्वी मैम हाँ and 4 yes rupees is 25 paisa 0.25. ओके। सृष्टि एक बार इसको रिपीट कर लीजिए बेटा। सृष्टि लास्ट लाइन रिपीट कर लीजिए। Rupee 1 by 4, हाँ 75 पैसा, 1/4 75 नहीं है। 1/4 25 हाँ हाँ बोलिए। 25 पैसा, हाँ 0. पैसे 25 0. Rupee. हाँ रुपी 0.25। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कलरफुल डिजाइन। ओके व्हाट देखो यू कैन सी वन पिक्चर इन दैट पेपर स्ट्रिप्स आर arranged and what part of this sheet is colored blue. So total how many part is there? See, find out, count and say 1 2 3 10 4 parts. 5 6 7 8 9. How many parts are there? 10 10 parts. Out of 10, how many part is colored blue? 1 part. 1. So what will you write One. here? Dash by 10. 1 by 10. 1 by 10. By 10. Next line. What part of the sheet is colored green? Total 10 3 by parts 10. are there. 3 by 10. 3. 3 by 10. 3 by 10. Which color 3 by covers 0.2 of the sheet? 0.2 means 2 by 10. 0.2 means 2 by 10. Which color is there? No, red तो पूरा 2 नहीं है ना, 1.5. Yellow. You write yellow. Which color covers 0.2 of the sheet? 0.2 means 2 by 10. 10 में से 2. Okay, so that is yellow. Okay, then there is one question. Oh, the blue strip is 0.1 of the sheet. 1 by 10 माने 0.1. 3 by 10 means 0.3. समझ में आ रहा है ना? Next, similarly, there is one more strip. One more strip. That strip is divided into how many equal parts? 10 को फिर 10 into 10 कर दिया है. Total how many parts are there? 100 parts. There are 100 equal parts. So each of 1 by 100 part of the sheet. हर एक छोटा सा बॉक्स. Is it 1 by 100 part of the sheet? 100 में से एक. Yes. Then next question is how many blue boxes are there? How many means number. ध्यान रखना. 1 by 2 by 10. How many blue boxes are there? 10 are there. Is 10 blue equal to 10 by 100 of the sheet? Yes. इसका मतलब yes. We saw that blue is equal to 1 by 10 of the sheet. पहले वाला पिक्चर में देखो उतना ही ब्लू को हम 1 by 10 भी बोला है. इसका मतलब 1 by 10 और 10 by 100 आर सेम. देखो 10 by 100 से एक रो को काट दो क्या बनेगा? 1 by 10 बनेगा. 1 by 10 बनेगा. ठीक है. इसका मतलब 1 by 10 is can be written as last sentence 0.1. Is it correct? Next page में first line देखिए very important result. 10 by 100 is same as 1 by 10.
सेम है ना, 10/100 को ऊपर नीचे एक एक जीरो काट दो तो 1/10 बनेगा, दोनों सेम है। इक्वल टू 0.10, ये हमने किया था, राइट साइड का 0 को हटाने वाला। 0.10 is same as 0.1. 0.1. Ma'am, so How many boxes are red? How many means number. How many boxes are red? Second वाला उसमें how many boxes are red? 15 boxes. 15. What part means fraction. What part of the sheet is this? 15 upon total कितना है? 15 by 15 by 100. 20. 15 by 100. Can we also write it as 0.15? 15 by 100 is same as 0.15. देखो अब इसमें और भी थोड़ा सा बाकी है, खत्म नहीं हुई अभी। ओके, सो यू डू वन थिंग, कल इसका जो जितने भी बाकी है एक बार रीड करके आना। टुमारो वी विल फिनिश दिस, since this chapter is very important, I am taking this much time, but anyway our time is over, so we are going to do Shanti Path today. Okay, okay, Shanti Path करते हैं। देखो 10:41 हो गया। Okay, let us join our hands and thank God through Shanti Path. शांति शांति शांति। बेटा Bye, ma'am.